Hello dear children, welcome to my English video class for 24th June. I'm sure children you all are keeping safe, you all are hale and hearty in your homes. Do take very good care of yourselves, take all the necessary precautions, follow all the safety protocols and COVID protocols. Stay home, stay indoor and stay safe children. We have completed poem number 2, which was a box of crayons. So today I am going to start lesson number 3 in your English course book, which is Wordsworth English Reader. I am going to start lesson number 3. So children, turn to page number 22. Turn to page number 22, that is Little Red Hen. Okay, before we start the lesson, you can see few pictures on both the pages. लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. आपको पेज में, दोनों पेज में कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी. You can see some pictures on both the pages. Now on this page, the picture which you see, इस पेज में जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है? What all do we see? We can see few animals. इस पिक्चर में हमें कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं. ओके, क्या क्या एनिमल्स दिख रहे हैं? एक हमें we can see a cat. The cat is sitting on a branch. We can see a dog. The dog is sitting under a table. Then we can see a duck also. We can see a pond. Maybe it is a pond. थोड़ा पानी हमें दिख रहा है. Maybe pond है. We can see a duck near the pond. And we can see a hen which is red in color. And the hen is holding something in a beak. उसने अपनी बीक में कुछ पकड़ा हुआ है. ठीक है ना? तो इसमें हमें कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं. So that means the lesson, this story is related to these animals only. Because since ये pictures में हमें ये animals दिख रहे हैं, that means कि ये जो story है, ये जो lesson है, it is related with animals. कोई ये animals से related कोई story है. अभी हम story पढ़ेंगे तो we will come to know. On this page also you can see that the hen, यहाँ पे इस picture में we can see the hen all alone, and in this picture also we can see the hen all alone. इधर हमें क्या दिख रही है? Hen has वो जो घास वगैरह काटने के लिए जो लोग villages में जो यूज करते हैं, सिकल बोलते हैं जिसको, उसके हाथ में वो दिख रहा है. और इधर में इस पिक्चर में we can see the hen carrying something on her shoulders. ठीक है, कुछ अपने शोल्डर पे कुछ चीजें कैरी करके वो कहीं जा रही है. सो मे बी दिस लेसन इज अबाउट द एनिमल्स एंड पर्टिकुलरली अबाउट द hen. ठीक है, तो ये पिक्चर्स देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेसन है वो इन एनिमल्स के बारे में है, एंड पर्टिकुलरली खास करके इस hen के बारे में. Because in this picture we can see other animals also. दूसरे animals भी हमें दिख रहे हैं. But in these two pictures we can see only the hen. ठीक है, इन दो pictures में, इन two pictures में हमें सिर्फ hen दिख रही है. Okay, so now let us start the lesson. The name of the lesson is Little Red Hen. Okay, let us see the story. The story is Little Red Hen. Okay, little means छोटा, red that is red color, and hen we all know hen माने मुर्गी. So this lesson seems to be about a little red hen. छोटी सी red color की hen के बारे में ये lesson है, as the name suggests, Little Red Hen. Okay, I will read the lesson once. एक बार lesson read करूंगी. I will explain it. उसका explanation बताऊंगी, story बताऊंगी, and then I will tell you each and every word. Okay? So the lesson goes like, once upon a time,
After reading the lesson once, I will write each and every paragraph on board and I will tell you the pronunciation of each word, okay? Once upon a time, there was a little red hen. She lived on a farm with a lazy dog, a sleepy cat and a noisy duck. Once upon a time. Once upon a time का मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है. Once upon मतलब बहुत टाइम पहले, बहुत पहले की बात है. ठीक है. Children, of course these stories are not real. ये तो सबको पता होगा कि ये जो स्टोरीज है ये रियल नहीं है. ठीक है, सारी इमेजिनरी ऐसी स्टोरीज हैं. ओके, तो वंस अपॉन ए टाइम मतलब बहुत समय पहले एक लिटिल रेड हेन थी. ठीक है. देयर वॉज अ, सिंस वंस अपॉन ए टाइम बोल रहे हैं मतलब बहुत टाइम पहले की बात है. दैट मीन्स द स्टोरी इज इन पास्ट टेंस ओनली. ठीक है, सो दैट इज वाई वॉज इज यूज्ड. बहुत पहले की बात है तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी वो हो चुका है. तो देयर वॉज अ लिटिल रेड हेन. शी लिव्ड ऑन अ फार्म विथ अ लेजी डॉग. वो एक फार्म पे रहती थी. फार्म मतलब एक बड़ा सा फील्ड जैसे. ठीक है, फार्म मतलब बहुत बड़ा सा एरिया जहाँ पे ग्रास होती है, ग्रास लैंड जैसा बहुत बड़ा सा एरिया. ठीक है. शी लिव्ड ऑन अ फार्म विथ अ लेजी डॉग, अ स्लीपी कैट एंड अ नॉइजी डक. लेजी डॉग मतलब आलसी. लेजी मीन्स आलसी. ठीक है. कैसा डॉग कैसा था? लेजी. नॉर्मली डॉग्स आर नॉट लेजी. डॉग्स आर वेरी एक्टिव. दे आर वेरी अलर्ट. अलर्ट रहते, जरा सी भी आवाज होती फट से दे स्टार्ट बार्किंग. बट दिस वॉज अ लेजी डॉग. A sleepy cat, as you can make out कि जो cat है that is sitting on the branch of a tree and its eyes are closed. Cat की जो आंखें हैं वो ऐसे करके closed हैं. That means the cat is sleepy. Sleepy means someone who always likes to sleep. जिसको हर समय हमेशा नींद आती रहती है. जिसे कहते हैं ना कि मुझे बहुत नींद आ रही है. तो कैसे इसको बोलते हैं? We say I'm feeling very sleepy. मतलब बहुत नींद आ रही है. तो sleepy cat का मतलब है कि स्लीपी मीन्स समवन हु ऑलवेज वांट्स टू स्लीप. जिसको हमेशा सोने का मन करता हो. सो दिस कैट वाज वेरी स्लीपी मतलब हर समय सोती रहती होगी. तो स्लीपी कैट एंड अ नॉइजी डक. नॉइजी का मतलब है, नॉइज का मतलब होता है शोर, आवाज. तो नॉइजी मीन्स समवन हु मेक्स लॉट ऑफ नॉइज, जो बहुत शोर करता है. बहुत ज्यादा बात करना. आप कोई बहुत ज्यादा बात करेगा तो थोड़ा शोर भी हो गई. तो नॉइज का मतलब है, नॉइजी मीन्स समवन हु मेक्स लॉट ऑफ नॉइज, हु स्पीक्स अ लॉट. ठीक है. सो हियर द वर्ड लेजी इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ डॉग. डॉग के बारे में बता रहे. स्लीपी टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ कैट एंड नॉइजी टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ डॉग. नॉइजी सॉरी डक. ठीक है. एज वी कैन सी अ पॉन्ड हियर, दैट मीन्स जो डक थी वो पॉन्ड में रहती थी. सो दिस hen, little red hen, she lived with these three animals. One day, the little red hen found some grains of wheat. One day, मतलब एक दिन. The little red hen found. Little red hen को क्या मिला? कुछ wheat के दाने. Some grains of wheat. Grains मतलब दाने. ठीक है. तो एक दिन little red hen को क्या मिला? कुछ wheat के दाने. Since the lesson is in past tense, once upon a time बोला है, that means lesson past tense में है. तो आप देखोगे कि जो भी action words जो use कर रहे हैं lesson में, all the action words are used in past tense only. जो भी action words, जो कि action words मैंने बताया था कि previous lesson में भी, कि the words which tell us about any kind of work, जो words हमें किसी भी तरह के काम के बारे में बताते हैं, they are action words. तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं दे आर यूज्ड इन पास्ट टेंस. एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो या तो कोई काम हम करते हैं तो हम अभी कर रहे हैं, या ऑलरेडी हम कर चुके हैं, या आने वाले टाइम पे करेंगे. ठीक है. तो जो मेन वर्ड है उसको तो हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई काम अभी कर रहे हैं वो हमें बताना होता है. कोई काम हम कर चुके हैं पास्ट में तो उसके लिए हम उसका पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. और कोई काम अगर हमें फ्यूचर में करना है देन वी यूज द फ्यूचर फॉर्म. Okay, so in this lesson you will find the past form of action words because this is already over. तो एक दिन little red hen को क्या मिला?
वीट के कुछ दाने, वीट मतलब गेहूं, जिसको पीस करके फिर रोटी आटा बनता है, आटे की रोटी बनती है। तो एक दिन लिटिल रेड हेन को सब कुछ थोड़े से गेहूं के दाने मिले। हु विल प्लांट द ग्रेन्स, शी आस्क्ड। हु मीन्स कौन। क्वेश्चन वर्ड्स मैंने बताए थे, हु, whom, when, where, what, whose, how. These are all question words. Means when we wish to ask any question, we use these words. जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं। ओके, सो हु विल प्लांट द ग्रेन्स। हु का मतलब है कौन, जैसे व्हाट माने क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन। तो द लिटिल रेड हेन आस्क्ड हु विल प्लांट द ग्रेन्स। प्लांट का मतलब है लगाना, ठीक है। प्लांट वर्ड जो है दैट इज अ नेमिंग वर्ड ऑल्सो एंड इट इज अ वर्ब ऑल्सो। जब हम किसी पौधे के बारे में बात करते हैं देन वी से प्लांट, और जब हम पौधों को जमीन में लगाने की बात करते हैं देन ऑल्सो वी से प्लांट। प्लांट द प्लांट। तो प्लांट द प्लांट का मतलब है जो फर्स्ट वाला जो प्लांट है, जैसे इफ आई से आई planted a plant। तो फर्स्ट वाला जो प्लांट है दैट इज एन एक्शन वर्ड। यहाँ पे प्लांटेड का मतलब है लगाना, और यहाँ पे प्लांट का मतलब है पौधा। दिस इज अ नेमिंग वर्ड, दिस इज पौधा, ठीक है। मतलब मैंने एक पौधा लगाया, तो आई प्लांटेड अ प्लांट, ठीक है। सो प्लांट पौधा भी है एंड प्लांट का मतलब है लगाना। लिटिल रेड हेन आस्क्ड हु विल प्लांट द ग्रेन्स। मतलब इन ग्रेन्स को कौन प्लांट करेगा, कौन जमीन पे लगाएगा। नॉट आई, सेड द लेजी डॉग हु वॉज सिटिंग अंडर द टेबल। जो लेजी डॉग जो कि टेबल के नीचे बैठा था, यू कैन सी हियर, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि दैट द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। द डॉग सेड नॉट आई, मैं तो नहीं लगाऊंगा। डक ने जो, और उसके जो तीन फ्रेंड्स थे, द स्लीपी कैट, लेजी डॉग एंड नॉइजी डक, सबसे पूछा तो सबसे पहले लेजी डॉग ने कहा नॉट आई, मैं तो नहीं लगाऊंगा। बड़े आराम से वो टेबल के नीचे बैठा था, उसने कहा नॉट आई, मैं नहीं लगाऊंगा। नॉट आई, सेड द स्लीपी कैट हु वॉज ऑन द ट्री। यू कैन सी दैट द कैट इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो स्लीपी कैट ने भी कहा कि मैं नहीं। आराम से वो ट्री पे बैठी हुई थी, आराम से सो रही थी। शी सेड मैं भी नहीं लगाऊंगी। नॉट आई, सेड द नॉइजी डक हु वॉज रेस्टिंग नियर द पूल। यू कैन सी द डक हियर, यहाँ पे आपको डक दिख रही है, वो आराम से पूल के पास। यू कैन सी द ब्लू वाटर ऑल्सो। पूल मतलब छोटा सा तालाब जैसा जो होता है फार्म में। तो वो आराम से पूल के पास रेस्ट कर रही थी एंड शी सेड नॉट आई, मतलब मैं भी नहीं, उसने भी मना कर दिया। मतलब 3 ऑफ देम रिफ्यूज्ड, तीनों ने मना कर दिया। देन आई विल, सेड द लिटिल रेड हेन। तो लिटिल रेड हेन ने कहा ठीक है, तब मैं लगा लूंगी। स्लीपी कैट सेड नो, लेजी डॉग सेड नो, नॉइजी डक सेड नो। तो उसने कहा ठीक है, मैं ही लगा लूंगी। शी बरीड द व्हीट इन द ग्राउंड। बरीड मतलब दबा देना। तो लिटिल रेड हेन ने कहा, जब उसके तीनों फ्रेंड्स ने मना कर दिया, ऑल 3 ऑफ देम रिफ्यूज, शी सेड ओके, ठीक है मैं लगा लूंगी। तो उसने वो व्हीट के जो ग्रेन्स उसको मिले थे, उसने उनको जमीन में दबा दिया। बरी मीन्स दबा देना, जमीन में नीचे दबा देना। तो उसने उन व्हीट के ग्रेन्स को जमीन में दबा दिया। आफ्टर सम टाइम द व्हीट प्लांट ग्रीव अप येलो एंड राइप। राइप मीन्स जो बिल्कुल पक जाता है, बिल्कुल, विच इज समथिंग विच इज रेडी टू ईट। जैसे मैंगोज को हम बोलते हैं दीज आर राइप मैंगोज, मतलब पके हुए मैंगोज है, आप इसको आराम से अभी खा सकते हो, ठीक है। तो जब लिटिल रेड हेन ने उन व्हीट के ग्रेन्स को मिट्टी में दबा दिया और थोड़े दिन बाद उसमें से प्लांट्स निकले, प्लांट्स वो ग्रो कर गए एंड दे वर ऑल येलो एंड राइप, मतलब वो जैसे खाने के लिए बिल्कुल वो तैयार थे। प्लांट्स निकले ग्रेन्स में से और वो प्लांट्स बिल्कुल खाने के लिए दे वर रेडी टू बी ईटन। राइप मतलब बिल्कुल तैयार, ठीक है। येलो येलो एंड राइप मतलब बिल्कुल रेडी थे, खा सकते थे आराम से उनको। द व्हीट इज राइप नाउ। राइप मीन्स पका हुआ।
द wheat is ripe now. Who will cut and thresh it? Asked little red hen. ठीक है, लिटिल रेड hen ने कहा कि अभी wheat तो बिल्कुल रेडी है, अभी wheat को कौन काटेगा और उसकी कौन threshing करेगा. Threshing is a process in which the seeds are separated from the outer covering, हस्क जो उसका छिलका होता है. ठीक है, जैसे गेहूं है, धान है, ये जब लेकर जाते हैं विलेजेस में, जैसे जब काट करके इसको लेकर जाते हैं तो इसकी थ्रेशिंग होती है, थ्रेशिंग मशीन होती है, उससे प्लांट्स से ग्रेन्स को अलग करते हैं. प्लांट से ग्रेन्स को अलग करना, जो उसका बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है, छिलका होता है, उसको भी अलग करना. तो थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, प्लांट से जब ग्रेन्स को अलग करते हैं. तो लिटिल रेड हेन ने पूछा कि प्लांट्स तो पूरी तरह रेडी हैं, पूरे तैयार हो गए हैं, इनको कौन काटेगा और कौन इनकी थ्रेशिंग करेगा. आज द लिटिल रेड हेन हु विल कट एंड थ्रेश इट. मतलब इन प्लांट्स को कौन काटेगा, हु विल कट, हु मीन्स कौन, कौन काटेगा और कौन इसकी थ्रेशिंग करेगा. नॉट आई सेड द लेजी डॉग. अगेन डॉग वॉज लेजी. डॉग सेड नॉट आई. पहले भी उसने मना किया, अभी भी मना कर दिया. Not I, said the sleepy cat. Same thing with sleepy cat also. पहले भी उसने मना किया, अभी भी मना कर दिया. Not I, said the noisy duck. That means the duck also she only knew how to make noise. वो सिर्फ में भी हल्ला मचाती रहती थी, काम कुछ नहीं करती थी. तो उसने भी मना कर दिया. She said not I, said the noisy duck. Noisy duck ने भी मना कर दिया. Then I will, said the little red hen. अभी जब उसके बाकी 3 फ्रेंड्स ने मना कर दिया तो लिटिल रेड हेन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. उसने कहा ओके, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं ही करूंगी, मैं ही कट भी करूंगी और मैं ही थ्रेश भी करूंगी. शी कट इट विथ हर बिल एंड थ्रेश्ड इट विथ हर विंग्स. बिल का मतलब होता है ये वाला जो ऐसा वाला जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इट इज लाइक दिस, ऐसे करके होता है ये. दिस इज द हैंडल फॉर होल्डिंग इट एंड ऐसे पूरा होता है, यहाँ से बहुत शार्प से होता है, ये पूरा नाइफ जैसे होती है. और जैसे ग्रास वगैरह काटते हैं तो ऐसे एक हाथ में ग्रास को पकड़ते हैं पूरा उसका बंच, और दूसरे हाथ से राइट हैंड से उसको कट करते जाते हैं. ओके, तो उसने क्या किया, उसने पहले शी कट इट विथ अ बिल. पहले उसने, इधर आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट शी इज होल्डिंग सम ऑफ द प्लांट्स. तो ऐसे पकड़ करके फिर नीचे से उनको कट कर देते हैं. तो एक साथ बहुत सारे प्लांट्स कट हो जाते हैं. तो उसने, लिटिल रेड हेन ने प्लांट्स को अपने बिल से कट किया पहले एंड थ्रेश्ड इट विथ हर विंग्स. फिर उसके बाद जो उसके जो अपने विंग्स थे, उन विंग्स से उसने उनको थ्रेश किया, मतलब सीड्स को प्लांट में से अलग किया. ठीक है, अपने विंग से मार मार करके सीड्स को प्लांट में से अलग किया. Who will take this wheat to the mill? She asked. अभी वीट जो है वो प्लांट में से अलग हो गया था. जितने जो वीट ग्रेन्स थे दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट नाउ. तो अभी उसने बोला अब उनको ग्राइंड करने की जरूरत थी, पीसने की जरूरत थी, तब तो उससे आटा बनता ना. तो शी आस्क्ड कि हु विल टेक दिस वीट टू द मिल. अभी उसको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए तो मिल में जाना जरूरी है, जहाँ पे जो राइस मिल होती है, फ्लावर मिल होती है, जहाँ पे जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे गेहूं के भी ग्रेन्स होते हैं, वीट, और चावल के भी, उसको भी अलग करना होता है. तो जो मिल्स होती है वहां पे फिर आगे ग्राइंडिंग की जाती है बाकी चीजों की. तो उसने पूछा कि हु विल कट इट एंड हु विल थ्रेश इट. मना कर दिया. देन शी आस्क्ड, उसने अपने आप किया. फिर उसने पूछा कि हु विल टेक दिस वीट टू द मिल. अभी इस वीट को मिल में कौन लेकर जाएगा, इसको ग्राइंड भी करवाना है. ठीक है, उसको ग्राइंड करके उसका आटा भी बनाना था. तो उसने पूछा कि ये मिल में कौन लेकर जाएगा. ठीक है, अगेन ऑल 3 of them refused. Not I, said the lazy dog who was sitting behind the cat now. अभी पहले तो डॉग जो है वो टेबल के नीचे बैठा था, उसका दो जाके कैट के पास बैठ गया. तो सबसे पहले लेजी डॉग ने कहा नॉट आई, मैं तो नहीं ले जाऊंगा. नॉट आई, सेड द स्लीपी कैट हु वॉज जंपिंग ओवर द बेंच. तो स्लीपी कैट ने कहा मैं भी नहीं ले जाऊंगी, अभी तक तो वो ब्रांच पे बैठी थी, नाउ शी वॉज जंपिंग ओवर द बेंच. वो एक बेंच के ऊपर वो
जंप कर रही थी. देन नॉट आई सेड द नॉइजी डक हु वाज स्विमिंग इन द पूल. अभी नॉइजी डक जो कि पूल में स्विमिंग कर रही थी उसने भी मना कर दिया. उसने कहा मैं भी नहीं ले जाऊंगी. नॉट आई. अगेन पुअर लिटिल हेड रेड हेड, शी डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. उसके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था. सबसे पहले जब उसको ग्रेन्स मिले उसके फ्रेंड्स ने सबने रिफ्यूज कर दिया तो उसने खुद ग्रेन्स लगाए. उसके बाद जब पूरी क्रॉप तैयार हो गई, जब प्लांट्स तैयार हो गए तो उसने पूछा कि हु विल कट एंड थ्रेश देम. अगेन हर फ्रेंड्स रिफ्यूज्ड. फिर उसके फ्रेंड्स ने रिफ्यूज कर दिया. फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, हु विल टेक दिस वीट टू द मिल. ये वीट जो है वो मिल कौन लेकर जाएगा. वहां भी सबने रिफ्यूज कर दिया, सबने मना कर दिया. तो शी सेड देन आई विल सेड द लिटिल रेड हेन. अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. उसने कहा ठीक है मैं लेकर जाऊंगी. शी टुक द वीट टू द मिल फॉर ग्राइंडिंग इट. ग्राइंड करना मतलब पीसना, किसी भी चीज का पाउडर बनाना. ठीक है ना, जैसे चने की दाल को ग्राउंड करके बेसन बनाते हैं, चावल को ग्राइंड करके उसका आटा बनाते हैं. घर में हमें इडली डोसा वगैरह कुछ बनाना होता है तो हम ग्राइंड करते हैं. वी सोक द राइस, वी सोक द दाल एंड देन वी ग्राइंड इट. तो ग्राइंड का मतलब है पीसना. तो फिर वो लिटिल रेड हेन जो है वो सारा वीट वो मिल में लेकर के गई उसको ग्राइंड कराने के लिए, मतलब पिसवाने के लिए. देन शी कैरीड द फ्लावर बैक टू द फार्म. अभी जो है फ्लावर बिल्कुल रेडी हो गया, मतलब पूरा जो प्रोसेस था वीट के ग्रेन्स मिले तो उसको लगाना, प्लांट्स को कट करना, थ्रेश करना, ठीक है, उसको क्लीन करके उसको फिर मिल ले जाना, वहां पे पीस करके वापस लाना, वो सारा काम लिटिल रेड हेन ने अकेले किया. उसने फिर से पूछा, अभी तो सबने मना कर दिया था तो वो जब मिल लेकर के गई वीट को, वहां पे उसने उसको ग्राइंड करवाया एंड देन शी कैरीड द फ्लावर बैक टू द फार्म. वीट वो लेकर के गई मिल में, ग्राइंडिंग कराया, उसके बाद जो उसका फ्लावर बना फिर वो अकेले ही, उसको पता था कि सब मना कर देंगे तो वो अकेले ही पूरा लेकर के वो फार्म पे आई. ठीक है, फार्म पे आके उसने फिर पूछा हु विल मेक ब्रेड विद दिस फ्लावर. शी आस्क्ड. उसने पूछा कि इस फ्लावर से, इस आटे से, इस मैदे से, आटा और मैदा दोनों गेहूं से बनता है. ठीक है, वन इज व्हीट फ्लावर दैट इज आटा एंड फ्लावर इज नॉर्मली मैदा. नॉट आई सेड द लेजी डॉग. ठीक है, फिर उसने पूछा कि हु विल मेक ब्रेड फ्रॉम दिस फ्लावर. आटे से हम क्या रोटी बनाते हैं ना, तो उसने पूछा कि इस आटे से अब रोटी कौन बनाएगा. अगेन द लेजी डॉग सेड नॉट आई, मैं तो नहीं बनाऊंगा. नॉट आई सेड द स्लीपी कैट. स्लीपी कैट ने भी मना कर दिया, लेजी डॉग ने मना कर दिया. नॉट आई सेड द लेजी डक, सॉरी नॉइजी डक. जो नॉइजी डक थी उसने भी मना कर दिया. देन आई विल सेड द लिटिल रेड हेन. शी मेड एंड बेक द ब्रेड. अब जब सबने मना कर दिया तो फिर से लिटिल रेड हेन ने कहा कि ठीक है मैं बनाऊंगी. उसने ब्रेड बनाया, बेक किया. देन शी आस्क्ड हु विल ईट दिस ब्रेड. अभी जब पूरी ब्रेड सब कुछ होने के बाद जब ब्रेड तैयार हो गई तो उसने पूछा कि हु विल ईट दिस ब्रेड. ये ब्रेड कौन खाएगा. अभी जैसी जब ब्रेड तैयार हो गई देन एवरीबडी वॉज रेडी टू ईट. उसके पहले किसी ने एफर्ट नहीं किया. ठीक है, तो अभी तक तो हर काम के लिए सबने बोला नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई. नाउ जब उसने पूछा कि हु विल ईट दिस ब्रेड तो लेजी डॉग ने सबसे पहले बुला के बोला आई विल, मैं खाऊंगा. उसकी बात सुन करके आई विल फॉर द स्लीपी कैट. जब स्लीपी कैट मतलब हमेशा सोती रहती थी तो उसने कहा कि आई विल, मैं खाऊंगी. आई विल क्वैक द नॉइजी डक. क्वैक मीन्स, क्वैक इज द साउंड ऑफ डक. जो एनिमल साउंड करते हैं तो क्वैकिंग इज द साउंड ऑफ डक. जैसे डॉग्स की साउंड इज बार्किंग, ठीक है ना, कैट्स म्यू. तो डक्स की जो साउंड होती है दैट इज नोन एज क्वैक. ठीक है, तो डक ने हल्ला मचाते हुए, शोर मचाते हुए कहा कि आई विल, मैं खाऊंगी. मतलब जब ब्रेड बन गई तो लेजी डॉग वॉज ऑल्सो रेडी टू ईट, स्लीपी कैट वॉज ऑल्सो रेडी टू ईट एंड नॉइजी डक वॉज ऑल्सो रेडी टू ईट. दैट मीन्स all three of them were ready to eat. No, said the little red hen. जब ये सब ने कहा कि yes, I will, I will, I will, तो little red hen said no. उसने एक जोर से कहा no, कोई नहीं इसको खाएगा, मैं अकेले ये खाऊंगी. I will eat it all by myself.
and she ate the bread herself. उसने कहा कि नहीं, ये मैं अकेले मैं खाऊंगी और मैं किसी के साथ ही शेयर नहीं करूंगी, और उसने आराम से बैठ करके अकेले ब्रेड खाई. ओके, वाई? बिकॉज किसी का कोई शेयर था ही नहीं उसमें, सबने उसको रिफ्यूज कर दिया. ग्रेन्स मिले, ग्रेन्स लगाने से रिफ्यूज कर दिया. दे रिफ्यूज टू प्लांट द ग्रेन्स. देन व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, दे रिफ्यूज टू कट इट एंड थ्रेश इट. व्हेन it was time to take wheat to the mill, everybody said no. मिल से फिर फ्लावर जब बन गया था, फार्म तक लेके आना था, everybody said no. तो जब सारा काम उसने अकेले किया तो why should she share? जैसे हम कहते हैं ना कि हमको अपने फ्रेंड्स के साथ चीजें शेयर करनी चाहिए, लेकिन इन दैट केस फ्रेंड को भी तो इक्वली हमारी हेल्प करनी चाहिए ना. अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं तो फ्रेंड को भी हेल्प करनी चाहिए. यहाँ पे क्या हुआ कि लिटिल रेड हेन थी, शी डिड एवरीथिंग अलोन. उसके किसी फ्रेंड ने उसकी किसी भी स्टेप पे कोई भी हेल्प नहीं की. उसे सबसे पूछा बट दे ऑल रिफ्यूज. ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, बट स्टिल दे रिफ्यूज. ओके, तो जब उसके फ्रेंड से रिफ्यूज कर दिया तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों शेयर करेगी? उसने नहीं शेयर किया और उसने अकेले अपना जो ब्रेड बनाई थी आराम से बैठ के अकेले खा लिया. एंड हियर यू कैन सी दैट शी इज ईटिंग द ब्रेड. उसने अपना ब्रेड बेक किया, वो ब्रेड अपना मतलब शी इज ईटिंग द ब्रेड, खा रही है. एंड रेस्ट थ्री आर लुकिंग एट हर फेस. बाकी सब ऐसे करके उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं और वो अपना आराम से बैठ करके खा रही है. एंड दिस इज करेक्ट ऑल्सो, क्योंकि किसी ने उसकी हेल्प नहीं की किसी भी स्टेप पे. ठीक है ना, मतलब पुअर लिटिल रेड हैंड, छोटी सी होगी. लिटिल रेड हैंड मीन्स छोटी सी थी, तो शी डिड एवरीथिंग ऑल अलोन. उसने सारा काम अकेले किया. जब किसी ने उसकी हेल्प नहीं की तो फिर वो किसी के साथ क्यों शेयर करती? उसने किसी के भी साथ कुछ भी शेयर नहीं किया. सो चिल्ड्रन, दिस इज द स्टोरी. ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट टुडे, नेक्स्ट क्लास में आई विल राइट द पैराग्राफ्स. ओके, एंड देन आई विल टेल यू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड. हर एक वर्ड का मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब आपको बताऊंगी. एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑल्सो. ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी से हमको क्या मैसेज मिल रहा है? मैसेज हमको ये मिलता है कि वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड. हमको अपना काम शेयर करना चाहिए. अभी जब उस फार्म पे चारों एक साथ रहते थे तो अदर थ्री शुड हैव हेल्प द लिटिल रेड हैन. बाकी जो थ्री थे उनको लिटिल रेड हैन की हेल्प करनी चाहिए थी. ठीक है, बट उन्होंने नहीं किया. तो जब उन्होंने उसकी हेल्प नहीं किया तो वो उनके साथ क्यों शेयर करे? वी से दैट वी शुड शेयर आवर थिंग्स विथ आवर फ्रेंड्स, बट नॉट ऑलवेज. अगर फ्रेंड की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, अगर फ्रेंड की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं है, तो हम फिर क्यों शेयर करें? अभी सारा उसने एफर्ट अकेले किया. अगर उसके फ्रेंड्स ने भी हेल्प किया होता तो सारे लोग अपना काम शेयर करके आराम से मिल करके खाते. अभी उन लोगों ने काम तो कुछ नहीं किया, बट दे ऑल वांटेड टू ईट द ब्रेड. बिना मेहनत किए, बिना काम किए बैठ करके बस आराम से ब्रेड खाना चाहते थे. तो लिटिल रेड हैन रिफ्यूज्ड. ओके, उसने मना कर दिया. सो दिस इज द स्टोरी. अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ चीजें शेयर करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट, बट देन इन दैट केस इट शुड बी बोथ वेज. दोनों तरफ से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप तो बहुत केयर करते हो फ्रेंड्स की, आप बहुत ज्यादा केयर करते हो, यू शेयर एवरीथिंग विथ योर फ्रेंड, बट योर फ्रेंड डज नॉट केयर. सो दैट इज नॉट करेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल राइट द पैराग्राफ्स ऑन द बोर्ड. एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बताऊंगी एंड एक एक वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज मैं बताऊंगी. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. अभी मैंने बस स्टोरी पूरी आपको बता दी है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल रेड hen and 3 of her friends. ठीक है, so this is a very nice story and we get the moral that we should share our friends, we should share our work. जब सारे एक साथ रहते थे, चारों एक साथ रहते थे, तो सबको अपना वर्क शेयर करना चाहिए था, but they did not share the work. Okay, little red hen did everything all alone. Okay children, so today I will stop here only, and in the next class, as I told you, I will
tell you the meaning of each and every word. And since this lesson is in past tense, you will find that all the action words are used in past tense only. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much. Have a good day.